here is Mangesh Naneshwar Borkar sir, Director Sambodhi IAS Academy, Mumbai, Thane. And this is our third session related to our 20 days IAS and other competitive examinations foundation course. On 15th we started, 15th May, and our regular session starts at 10:45 a.m. morning. So now on 15th I have explained to you the details about or the concept about this program. Okay, we discussed about our institution, Sambodhi Career Academy, okay, results, and the concept theme of this program, why this program is required. And since you people have joined this program with some intention, with some future aim, okay, all of you want to pursue some great career in the Indian bureaucracy or the state bureaucracy or in Army, Navy, and Air Forces, okay. And yesterday on 16th, please mute. ज्यांना शिंका येते त्यांनी म्यूट करून ठेवा. Okay. So yesterday we discussed there were two faculties, two officers, those who interacted with you. Milind Dumbere ji, okay, who was my UPSC batchmate, okay, my room partner during at Delhi when we were preparing at Delhi. So that time we took mains together. And now he's a DGP, Deputy Inspector General of Police at Pondicherry. So he interacted with you, and he appreciated your questions. Okay, after lecture, I talked with him and even to Namrata madam. So both were very much impressed with the questions which were raised, which were asked by the students. So they are saying that you people are not ordinary students. Okay, like whatever the questions they received, because these questions were never there in our mind during our school days. आप लोगों ने जो कल क्वेश्चंस पूछे, तो दोनों भी लोग जो है, मिलिंद डुम्बेरे जो DIG है और नम्रता पाटिल मैडम जो असिस्टेंट कमिश्नर है, तो उनको अच्छा लगा. मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया कल, तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्टूडेंट्स वाकई बहुत अच्छे हैं एंड दे आर लाइक दे विल गेट वेरी बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि आपको जो चीजें इस प्रोग्राम में मिलने वाली है, जो मिल रही है, उन्होंने कहा कि ये तो अपने तक वक्त था ही नहीं, और क्वेश्चंस जो रेज किए हैं तो स्टूडेंट्स काफी सारे अवेयर लग रहे हैं इस चीज के बारे में. दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ पैशन टू एंटर इनटू द इंडियन ब्यूरोक्रेसी. तो आपके बारे में काफी अच्छा जो एक ये जो है अभिप्राय, जिसको हम बोल सकते हैं एप्रिसिएशन जो है, so that was given by both the officers yesterday. And now in today's lecture I will discuss with you all the different services which are offered by UPSC Civil Services, and I will go comparatively with the state services also. Okay, so अभी हमारे जो lectures होंगे, जैसे आज का ये lecture, ये comparatively होगा UPSC Civil Services, MPSC State Services की जो opportunities होती है, या all the state services in India, because in different states of India there are different state service commissions. So उनका थोड़ा सा हम comparison करेंगे. जितनी भी services है उसके बारे में आपसे बात करूंगा. Structure जो होता है prelims, mains और interview, in that structure there is a content. Okay, there is a content that you people are also expecting the discussion on different topics. Okay, उसको थोड़ा सा presentation के साथ ये करना, बात करना. So all these things will happen in all the subsequent lectures. But हमारा प्लानिंग कैसा है कि आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज, ओके, एंटायरली यूपीएससी की जो अपॉर्चुनिटीज होती है उसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, फिर स्टेट सर्विसेज के साथ उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, किसका व्हाट इज द विच आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, उसके बारे में हम बात करेंगे. आफ्टर दैट जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, मतलब टुमारो वी शैल हैव अ गैप. ओके, टुमारो वी शैल हैव अ गैप एंड डे आफ्टर टुमारो वी शैल हैव अ लेक्चर. कल का हमारा गैप रहेगा, एक दिन की छुट्टी रहेंगी हफ्ते की, और उसके बाद जो है हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे. जैसे आज का 17 है तो 18 का गैप एंड 19, 20, 21, 23 तक के हमारे लेक्चर्स रहेंगे, सेम टाइम पे सेम लिंक के साथ. सो वी शैल स्टार्ट डिस्कसिंग अदर सर्विसेज ऑल्सो. जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जैसा CRPF है, CISF है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, सशस्त्र सीमा बल है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा. उसके बाद का जो लेक्चर होगा दैट विल बी रिलेटेड टू NDA एंड CDSC. Those people, those students who want to go into the defense services of India after qualifying like NDA exam, or like NDA is an exam which is based on 12th and CDSC is an exam which is based on your graduation. So I will discuss with you all those opportunities.
सो एटलीस्ट इट विल टेक नेक्स्ट 3 लेक्चर्स। इसमें आप हमारे 3 से 4 लेक्चर्स इसमें जाने वाले हैं। उसके बाद डॉक्टर जोसेफ प्रोडिक जो है उनका इसी वीक में पर्सनल मतलब ओवरऑल हाउ टू डेवलप अ पर्सनालिटी फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो एसएसबी वगैरह होता है, यूपीएससी के इंटरव्यूज होती है, सारी जो इंटरव्यूज होते हैं उसके लिए किस तरह से हमारा माइंडसेट होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए, किस तरह से हमने स्कूल लेवल से अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। सो ही विल टॉक अबाउट दैट राइट on coming Sunday. Dr. Tushaba Shinde, he will talk about international opportunities, that is international civil services. And from next week, we shall start a discussion on the subjects. So उसमें फिर हम history लेंगे, उसमें फिर हम geography, उसमें फिर हम constitution, okay, general science, even if required, reasoning and quantitative aptitude section, which is different for competitive examinations. Okay, so current affairs, how to read newspapers, okay, how to collect news from newspapers, how these news are helpful for the preparation of competitive examinations. आपके जो स्कूल लेवल के जो सब्जेक्ट्स है, हाउ टू रीड दो सब्जेक्ट्स, किस अप्रोच से उसको पढ़ना चाहिए, है ना, किस तरह से नोट्स निकालने चाहिए, ये जो माइन्यूट माइन्यूट बातें हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, सो दैट विल बेसिकली स्टार्ट इन द नेक्स्ट, बिकॉज वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। हम लोग अगर सब्जेक्ट्स पहले लेते हैं और फिर पैटर्न बाद में लेते हैं, सो दैट इज नॉट ओके, ओके, बिकॉज it is very important to understand pattern of the examination first, to understand all the opportunities. अगर किसी को ऐसा, आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो भी सकते हैं कि जिनको लिटिल बिट इसके बारे में जानकारी हो, लेकिन आई एम श्योर मेरे पास दिल्ली से क्लासेस करके आते हैं स्टूडेंट्स, पुणे से क्लासेस करके आते हैं एक एक 2-2 साल, बट दे डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट सर्विसेज। ओके, तो आप तो स्कूल के बच्चे हो, ओके, तो ऐसे सब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे पास आते हैं प्रॉपरली यूपीएससी एमपीएससी और काफी सारे सर्विसेज की जो लेक्चर्स कोचिंग होते हैं, वहां पे लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। सो दे आर आल्सो नॉट अवेयर अबाउट डिफरेंट सर्विसेज, they don't have any proper comparison, comparative analysis in their minds. So that's why I feel that it is my responsibility to share all these details with you. Okay, और अगर किसी को पता है, उस मैच्योर्ड लेवल पे अगर पता है, तो काइंडली लिसन वॉट एवर आई एम सेइंग, ओके, क्योंकि एक व्यक्ति को पता हो सकता है, 2 व्यक्ति को पता हो सकता है, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे मे नॉट हैव दिस डिटेल इंफॉर्मेशन। ओके, सो जिनको पता है उन्होंने इसको सुन लो, अगर उसमें कुछ अगर लगता है कि एडिशनली हमको मिल रहा है तो उसको स्वीकार करो, रिसीव द थिंग्स, ओके। और अगर बाकी जो स्टूडेंट्स है, दे मस्ट नॉट हैव दिस इंफॉर्मेशन, सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। सो डायरेक्टली we shall go for our this thing, okay? So I am starting with different examinations, different services examinations, right? And once again, इंटरनेट कनेक्शन का अगर आज का अगर कुछ इशू आया क्लाइमेटिक के चेंज की वजह से, तो थोड़ा सा you need to adjust the things because there is a problem of internet connectivity today. हाँ, so please see. Now, the first important thing, why we are going for different services or why we are opting different services. Chalo, now like we earlier conducted, okay, this is a short form of R. So why we aim for different services, why we want to go into different services? हाँ, आप बोल सकते हैं कल हम लोगों ने 2 जो ऑफिसर्स है उनकी बातें सुनी थी, and they explain कि why they shifted from their public sector job to proper authority job, why they shifted from private job to civil services. So now I just want to know from your side कि why you people want to get into these Indian bureaucracy or the state bureaucracy or the defense forces or whatever the forces. Okay, आप लोगों को क्यों लगता है कि आप लोगों ने भविष्य में सर्विसेज में जाना चाहिए? कोई भी बोल सकता है, एनीबडी। Sir, can I say? हाँ, yes. Please tell your name. This is Kushika Jadhav. हाँ, yes, Kushika, please. Sir, as you said yesterday that
to become a civil servant, we need to become a good human being first. So, Yes, as a good human being, it is our duty to serve the people and great. do good to them. So, this is the main reason why I would like to get into civil service. Very great. Great, great. Okay. Okay. Any other answer? Sir, may I? Ah, yes. Tell your I'm, name, please. yeah, I'm Srishti Wankhede. हाँ So सृष्टि I हाँ feel that this services is something interesting to go with rather than the daily jobs like doctor, engineering or something like that. To help the country, this is something new and different to do. So I would like to go to this Okay, job. what different you want to do? Like help the people in the rural areas or with their difficulties and solve their problems. Great. Okay, okay. So you people are like very kind of means you people are having a great social sense, I think. हाँ, आप लोगों को ऑलरेडी एक अच्छा सोशल सेंस है जो ब्यूरोक्रेट्स में होना चाहिए या किसी भी व्यक्ति में होना चाहिए. ओके, नॉट ओनली ब्यूरोक्रेट बिकॉज जनरली हम लोग ब्यूरोक्रेट से कम कांटेक्ट में आते हैं. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समाज में जब हम जीते हैं, सो दैट टाइम वी आर इन टच विद ईच अदर. ओके, सो वी शुड बी अ कोऑपरेटिव विद ईच अदर, राइट? ओके, चलो. तो लाइक दीज आर टू रिप्रेजेंटेटिव आंसर्स. ओके, आई फील कि this kind of mentality should be there. Okay, and these answers are nice answers, right? Okay, now regarding our bureaucracy. Okay, regarding our bureaucracy. So what is our bureaucracy? Like in these sessions, what we are going to take? मैंने जैसे कमिट किया था आप लोगों को कि एनडीए के बारे में मैं दूंगा. अभी हमारा है ना, ये देश है, ये हमारा देश है. मैं थोड़ा सा इंडिया का जरा ये निकालता हूँ. आई एम नॉट लाइक व्हाट यू कैन से, ये पेंटिंग वेंटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा इसको जरा समझ लेना. हाँ, ओके. तो ये ठीक है, ऐसा कुछ. सो ये हमारा, दिस इज अवर कंट्री. ओके, चलो इसको ऐसा इधर कर लेते हैं. चलो ठीक है, तो थोड़ा सा बन गया ये. हाँ, बहुत ही बिगड़ गया ये. इससे आप लोग मेरे से अच्छा निकालते होंगे. चलो ठीक है. नहीं सर, हम तो इससे भी ज्यादा गंदा बनाते हैं. अच्छा अरे नहीं नहीं, हाँ चलो ठीक है. ओके, सो ये हमारा लाइक कंट्री है. अभी क्या है ना कि वी आर हैविंग, इफ यू सी अवर कंट्री, सो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? ये ट्रायंगल को, इस शेप को हम क्या कहते हैं? Peninsula. Peninsula. या पेनिनसुला. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Peninsula. पेनिनसुला? What is the definition of peninsula? All three sides are covered with water. Three One. side facing sea. 3 sides taking with water is called. यस यस, यहाँ पे वाटर है ना, यहाँ पे वाटर है. तो यहाँ पे हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था जो है ना, यहाँ पे कोस्ट होता है. कोस्ट की जो सुरक्षा होती है वो होती है, ठीक है, इन द ओशियनिक रीजन स्पेसिफिकली. बट इफ यू सी, इफ यू गो टू दिस साइड, सो वी आर हैविंग अ बॉर्डर विथ डिफरेंट नेशंस, है ना. वी आर हैविंग अ बॉर्डर विद डिफरेंट नेशन. जैसे हमारे ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है ना. ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है. सो अभी क्या है कि लाइक हियर दिस साइड एंड दिस साइड, दिस पोर्शन इज जम्मू कश्मीर, दिस इज हियर इज लद्दाख, ठीक है. ओके, यहाँ पे समवेयर देयर इज अ तिबेट. ये पूरा का पूरा चाइना का पोर्शन है. यहाँ पे कौन सा कंट्री है जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है हमेशा का? बहुत अच्छा दोस्त है, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, राइट. तो हमारे यहाँ पे अगर इंडिया पाकिस्तान की मैच भी होती है, राइट, मैच भी होती है, तो मैच होती है तो हम क्या करते हैं? हाँ, अगर पाकिस्तान की टीम अगर हार गई तो हमारे यहाँ पे पूरे दिवाली मनाते हैं लोग, राइट, इंडिया में. हाँ, अगर इंडिया की टीम हार दिवाली गई, बनाते हैं. हाँ, तो इंडिया की अगर टीम हार गई तो फिर इन पाकिस्तान दे सेलिब्रेट लाइक फेस्टिवल. ओके, सो ये हमारी मतलब ये बहुत ही हमारा खास दोस्त है. तो एंड यहाँ पे इस साइड में अफगानिस्तान है, यहाँ पे ऊपर में फिर वो जितने भी वो कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, काजिकिस्तान वगैरह वगैरह, है ना. नाउ सी, दीज आर आवर बॉर्डर्स.
On the border region, we can see there is a military everywhere. Okay, there is a military. We are having three forces, three defense forces. Which are those? Air Force, Navy Force, and Navy and Air Army, Air हाँ. Force. Okay. Abhi, to assist these Army, Navy, and Air Force, there are another forces. इसी को assist करने वाले, like we are having three defense forces, Army, Navy, Air Force, है ना? And we are having paramilitary forces. Paramilitary forces क्या करती है? Anybody is having information about paramilitary forces? Like border security force. Yes, border security. तो border security border पे रहेंगी. हाँ, yes. सर वो ग्रीन कलर का वो क्या आपने लिखा है? यहाँ पे ये आर्मी है, आर्मी. ओ. हाँ, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स. ओके, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स. ओके, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स. सो हाँ, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो. हाँ, जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. आई एम टेलिंग यू सम स्ट्रक्चर कि हमारी सर्विसेज डेवलप किस तरह से हुई है, राइट? सो ये इंडिया का मैप हुआ और इसमें हमने देखी कि लाइक वी आर हैविंग बॉर्डर्स, ओके, एंड फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द डिफेंस ऑफ आवर नेशन, वी आर हैविंग आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, है ना? वी आर rendering defense to our nation through these services, three services. And if you, yes, Mohit, no issue, because internet issue is everywhere, right? So Army, Navy, and Air Force, these are three forces. Iske agar if you want to join these Army, Navy, Air Force as a commissioned rank officers, then at the like at very young age, you can appear for this NDA examination. Okay, जब आप 12th में होते हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो. इस एग्जाम के बारे में एक डिटेल अलग से सेशन होने वाला है, तो यहाँ पे मैं आज इसके बारे में बात नहीं करूंगा. I will just tell you कि how, like in India, defense, for the defense of India, there are defense services. So Army, Navy, Air Force. अगर if you fail to qualify this examination at this level, और इसका जो एज लिमिट होता है 19.5 होता है, लेकिन आपको आगे चल के जाना है आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में ही, तो दूसरा एक एग्जाम होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन, दैट इज CDSC, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन. इसके लिए भी 24 तक ही एज लिमिट होता है. ठीक है, अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग एज लिमिट होता है. And there is one more service through CDSC, that is OTA, Officers Training Academy. Okay, so there will be a separate session related to these. Okay, तो हमारे देश की सीमाएं जो है उसको सुरक्षित करने के लिए for defense of our all the like regions, border regions specifically, we are having Army, Navy, Air Force. Now there is another source, there is another force that is called as paramilitary. Okay, paramilitary. Okay. In 2004, UPSC conducted और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो UPSC है ना, Union Public Service Commission, UPSC not only conducts civil services examination, UPSC conducts NDA examination. UPSC is a commission, Union Public Service Commission. Okay, we are having Article 315 of Constitution, 312 of Constitution. So these two articles specifically related to Union Public Service Commission. Okay, so UPSC conducts civil services examination, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप IAS, IPS और अन्य 24 सर्विसेज में जाते हो. UPSC conduct NDA exam, UPSC conduct CDSC exam, UPSC conduct Central Armed पुलिस फोर्सेस एग्जाम, दैट इज पैरामिलिट्री फोर्स जो होते हैं, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको. सो यूपीएससी कंडक्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन वेयर द पोस्ट इज AC, दैट इज असिस्टेंट कमांडेंट. असिस्टेंट कमांडेंट इज अ क्लास 1 ग्रुप ए ऑफिसर. ओके, दे आर आल्सो इक्विवेलेंट टू दिस IAS एंड IPS बिकॉज द रैंक इज सेम. IAS IPS का जो होता है, दे आर आल्सो क्लास 1 ग्रुप ए ऑफिसर्स. असिस्टेंट कमांडेंट, दे आर आल्सो क्लास 1 ग्रुप ए ऑफिसर्स. ठीक है,
तो ये सारे के सारे यूपीएससी कंडक्ट करती है, ठीक है। और जैसे एक और एग्जाम होती है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड, जो कल मैडम जो थे, सो शी क्वालिफाइड यूपीएससी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का सेपरेट एग्जाम होता है, तो वो अलग से होता है, बट द सिलेबस एंड द पैटर्न ऑलमोस्ट दैट इज सेम, ठीक है। इसका भी जो सिलेबस एंड पैटर्न है दैट इज ऑल्सो almost same. The content of the examination that is same. उसमें भी history, geography and so many subjects are there which you need to study, ठीक है। तो ये सारी examinations हो गई हमारे सामने। प्लीज म्यूट करो वेदांत, म्यूट कर। ओके, हाँ, जब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो बाद में मैं आई विल गिव यू चांस टू आस्क क्वेश्चन, बट फॉर द टाइम बीइंग आप म्यूट करके रखिए। ओके, सो अभी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस। सो पैरामिलिट्री में कौन सी फोर्सेस है? इन पैरामिलिट्री देयर इज सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इन पैरामिलिट्री देयर इज सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ओके, सशस्त्र सीमा बल। देन वी हैव वेदांत, माइक म्यूट करून ठेव तुझं, हे पुन्हा सुरू करू नको वेदांत। ओके, सो वी आर हॅव्हिंग मार्कॉस पण त्याच्यामध्ये पण येते, मार्कॉस हे पण त्याच्यात येते का? मार्कॉस काय म्हणायचंय तुला? व्हॉट मॅक्रॉस यू सर, वांट? सी सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड आईटीबीपी। दीज आर द 5 फोर्सेस। ओके, एंड इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे। इसके बारे में भी मैं अलग से बात करने वाला हूँ आपसे, आज मैं केवल ये बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसका क्या काम होता है? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ दिस? सो दिस पैरामिलिट्री फोर्सेस, दे आर असिस्टिंग मिलिट्री and also they are assisting civilians. So एक हमने बताया, like one thing we talk about, that is defense services, second paramilitary, and third is civilian. So ये जो civilian वाली जो बात है ना, that is related to your civil services और your राज्य की जो state services exam जो होती है, okay, state services जो exam होती है वो, okay। So civilian मतलब देखो, एक हो गया डिफेंस वाला, आर्मी नेवी, these are totally isolated people, okay, they don't have any contact with the civilians। ये जो पैरामिलिट्री होती है ये इनको भी असिस्ट करती है और इनको भी असिस्ट करती है, like CRPF, Central Reserve Police Force। okay, many a times whenever there are communal clashes or when there is a problem of law and order situation, so that time we can see that कि these CRPF personals, आप देखते होंगे हमारे जैसे कहीं अगर कुछ हो गया है ना, कुछ दंगा फसाद हो गया या फिर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, सो दैट टाइम वी कैन सी दैट कि देयर आर पर्सोनल्स ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स, है ना। वो देखो नीला यूनिफॉर्म, ब्लू यूनिफॉर्म में आते हैं लोग, हाँ देखा है क्या आपने कहीं? ब्लू यूनिफॉर्म्स में आते हैं लोग, दे आर हैविंग, है ना। सो दीज पीपल दे बिलोंग टू सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, सो रैपिड एक्शन फोर्स ये उसका एक विंग है, ठीक है। तो ये जो सीआरपीएफ है, दैट सीआरपीएफ इज असिस्टिंग मिलिट्री आल्सो, लाइक डिफेंस फोर्सेस, एंड टू सिविलियंस आल्सो। फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है ना, दैट इज टू प्रोटेक्ट आवर ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट। जैसे हमारा जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, या जैसे हमारे एटॉमिक सेंटर्स होते हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है, तो वहां पे जो सुरक्षा जो प्रदान की जाती है, ऑल द सिक्योरिटी दैट इज अंडर सीआईएसएफ, ठीक है। तो हमारी ये जो फोर्सेस जो डेवलप हुई है ना, दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड दैट्स व्हाई दीज एग्जामिनेशंस। सो टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ आवर कंट्री, दीज सर्विसेज हैव बीन डेवलप्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अभी जो सर्विसेज है स्पेसिफिकली, वी टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज UPSC civil services examination, okay, and comparatively I will go for state services। तो इसमें देखो हमारा जो देश चलता है, ओके, हमारा जो देश चलता है, क्या क्या होता है देश में?
जैसे कल मिलिंद सर ने कहा था कि व्हाट इज द जॉब ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, उन्होंने कहा था स्कूल, रोड, है ना, वाटर, मतलब वॉट एवर द सिविलियन द फैसिलिटीज, ओके, ऑल द सर सिविलियन आपने फैसिलिटीज। रोड की साइड में क्या लिखा है? ये स्कूल है, ये रोड है, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, ओके, यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आई विल टॉक अबाउट द सर्विसेज, सो दैट टाइम आप लिखिए। मैं तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ी सी चित्रकारिता जो है वो कर रहा हूँ। ओके, सो हमारे क्या क्या होते हैं, मतलब लाइक देयर आर डिफरेंट सर्विसेज। जो 24 सर्विसेज है उसमें अलग अलग सर्विसेज का उद्देश्य क्या है। तो हम जैसे जिस समाज में रहते हैं, वेर एवर वी आर लिविंग, सो वी नीड व्हाट वी नीड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, वी नीड एजुकेशन। ओके, क्या क्या लगता है हमें, बताइए। और एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, ओके, एम्प्लॉयमेंट, चलो ठीक है। सर वैकेंसी तो होनी चाहिए तब एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे ना। वो वैकेंसी निकलती रहती है, स्टूडेंट्स पढ़ाई कम करते हैं। जो पढ़ते रहते हैं ना, जैसे आप जैसे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सो यू ज्वाइन बिकॉज यू आर स्टूडियस स्टूडेंट, राइट? यू ज्वाइन दिस सेशंस बिकॉज यू आर वेरी मच सिंसियर। आई फील कि यू आर सिंसियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई यू ज्वाइन। तो जो सिंसियर रहेगा, जो करेगा इसको, जो थोड़ा सा जिसमें कॉन्फिडेंस, पेशेंस, सिंसियरिटी, स्टूडियसनेस, ये जो क्वालिटी जिसमें है, सो दे विल डेफिनेटली सक्सेसफुल, है ना। जो लोग एक्सक्यूजेस देते रहते हैं ना, दे डोंट गेट एनी सक्सेस। वैकेंसी 10 हो या 100 हो, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बताओ। वैकेंसी 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? हेलो, उसके अंदर कैसे जाए? सर यू हैव टू एप्लीकेशन। अरे बाबा, आपको कितनी सीट्स चाहिए होती है? सर एक चाहिए होती है ना, एक। आपको सारी की सारी तो नहीं चाहिए ना, कि नहीं सारी की सारी सीट जो है मैं ही रख लूंगा 100 की 100। हाँ, मैं टॉपर हूँ, सो आई वुड रिटेन ऑल दीज 100 सीट्स। बाकी लोग नहीं ये करेंगे। सो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? योर रिक्वायरमेंट इज 1 सीट। तो उस 1 सीट के लिए आपको खुद को तैयार करना होता है। ये जो तैयारी चल रही है ना, दैट इज फॉर दैट ओनली। ओके, दैट इज फॉर दैट ओनली। ये जो आप लोग अभी स्कूल डेज से ये कर रहे हो, सो किसी you 55 to 60 students, those who join this specific program, now you are different from the crowd. आप लोग ना, जैसे आप लोग इस प्रोग्राम में जो आए हो ना, सो यू आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। क्योंकि आपके स्कूल में आपके जो बाकी जो बैचमेट्स होते हैं, they are not at all aware about these services. They don't have this kind of aim in their mind. At least you are thinking about these services. So भविष्य में सिलेक्शन के चांसेस किसके ज्यादा हैं? आप लोगों के ज्यादा है, आप लोगों के, सेक्शन वाले। हाँ, आप लोगों के ज्यादा है। सो यू विल बिकम ऑफिसर्स, ओके, आप लोग बनोगे। तो एनीवे, तो हमारा जो देश चलता है ना, सो वी आर हैविंग सम रिक्वायरमेंट। तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन की रिक्वायरमेंट, रोड रास्ते चाहिए होते हैं हमें, वाटर चाहिए होता है, ड्रिंकिंग वाटर, ओके, सारे जो भी फॉर द मटेरियल यूज, ओके, देन वी नीड सिक्योरिटी, ओके, हाँ, देन वी नीड सो मेनी थिंग्स। अकॉर्डिंगली इसी से क्या होता है ना, ये सर्विसेज डेवलप हुई है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, है ना, आईआरएस आईटी, आईआरएस कस्टम्स, लाइकवाइज, ठीक है। फॉरेन सर्विसेज, जैसे अभी हमारा वी हैव रिलेशंस विथ अदर नेशंस, ओके, वी आर हैविंग रिलेशंस विथ अदर नेशंस, वी वांट टू डेवलप रिलेशंस विथ अदर नेशंस, तो हमारी फॉरेन सर्विस डेवलप हुई। सो ऐसी कितनी हमारी सर्विसेज है यूपीएससी सिविल सर्विसेज टू 24 services. Okay, so we are having 24 services, and basically many of the students, many of the parents, they are having confusion कि आईएएस नाम की कोई एग्जाम है। आईएएस नाम की कोई एग्जाम नहीं होती है।
या आईपीएस नाम की कोई एग्जाम नहीं होती है। हम लोग जो देने वाले हैं, मतलब आप लोग जो देने वाले हो, वो कौन सी एग्जाम देने वाले हो भविष्य में? UPSC. यूपीएससी का Yes. सिविल सर्विसेज। Okay, if you want to go for this general administration, then you will appear for UPSC civil services exam. If you want to get into Army, Navy, Air Force, then you will appear for UPSC NDA NDA. at 12th level or UPSC CDSC after graduation, right? If you want to get into paramilitary, then you will appear for UPSC Central Armed Police Forces examination. ओके और जब आदमी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू करता है ना, ओके, बिकॉज हमारे देश में ऐसा है, मतलब एटलीस्ट आई सॉ इन महाराष्ट्र देयर इज नो एटमॉस्फेयर, नो कंपटीशन रिलेटेड टू एनडीए। हमारे यहाँ पे कोई भी एनडीए के बारे में सोचता ही नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये नॉर्थ एंड साउथ में ही ज्यादा पॉपुलर एग्जाम्स है। थोड़ा सा पुणे साइड में जहाँ पे कैंप वगैरह है, सो वहां पे एनडीए के बारे में स्टूडेंट सोचते हैं। अदरवाइज इवन इन मुंबई आई हैव बीन लाइक कंडक्टिंग दिस कोचिंग एंड ऑल दिस थिंग्स सिंस 15-16 इयर्स। महाराष्ट्र में सेंटर्स है एनडीए के? क्या सेंटर्स है? मतलब ट्रेनिंग सेंटर्स सावनेर में है। मेरा एक फ्रेंड है, वो उधर ही कर रहा है। मतलब मेरे साथ 10th में था, मैं अभी 12th में हूँ, तो उसने सावनेर में एडमिशन किया। वो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है। नो, लेकिन ये अब भी रिसेंटली थोड़े बहुत डेवलप हुए होंगे, या देयर आर सर्टन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वो स्टार्टेड। जैसे हम लोग भी अभी इन मुंबई वी नेवर गॉट अ कॉल फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, देयर आर समटाइम्स कभी आ जाते हैं स्टूडेंट्स ऐसे इक्के दुक्के वगैरह। ओके, सो वी फील टू प्रिपेयर अ बैच फॉर दैट, बट वी गिव देम इंडिविजुअल काउंसलिंग, guidance, and we arrange some special courses for the students. तो मुंबई में तो नहीं है। अगर सर मुझे सावनेर में अगर क्वेश्चन है। बोलो। सर हमारे इंडिया में कितने इंस्टीट्यूशंस है आईएएस और सबके लिए? Institutions means what you want to ask? हाँ, एकेडमी academy ट्रेन करने के लिए नहीं क्या? ट्रेन करने के लिए। अच्छा, आप कौन से इंस्टीट्यूशंस पूछ रहे हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस? सर गवर्नमेंट के। हाँ, गवर्नमेंट का कैसा होता है ना कि गवर्नमेंट देखो आपको मतलब ट्रेन करने के लिए पूछना है कि ऐसा कुछ आपके दिमाग में है कि भाई आईएएस लोगों के कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसा कुछ दिमाग में है कि स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बारे में पूछ रहे हैं आप? what exactly you want to ask? आईएएस के लिए। हाँ, आईएएस के लिए। नहीं, आईएएस के लिए मतलब आईएएस बनने के बाद के इंस्टीट्यूशंस पूछ रहे हैं कि आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए? आईएएस होने के बाद। आईएएस होने के बाद आईएएस एज सच आईएएस के ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं। There is a training institution when you qualify UPSC Civil Services examination, and when you get selected for IAS position, so लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है मसूरी में, उत्तराखंड में, ओके, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा आईएएस बनने के बाद ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप आईपीएस होते हैं तो हैदराबाद में होता है, ठीक है। तो एनीवे अभी मैं जाता हूँ डायरेक्टली इसी सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। Now, as I have told you, 24 services. So क्या होता है ना, हर साल क्या होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है सर्विसेज की, उसके हिसाब से सर्विसेज निकलती हैं। ओके, सो व्हाट हैपन, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 सीट्स है एक साल में निकली, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम निकली। नॉर्मली अभी का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली हैपन। नॉर्मली हमारे यहाँ पे फरवरी में एड निकलती है, ओके। मार्च तक उसका फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। यूपीएससी का जो वेबसाइट है upsc.gov.in, उस पे लगभग 1 महीना रहता है उसका ऐड का। अगर 15 को ऐड निकला है तो फिर वो इट विल बी टिल 15th ऑफ मार्च और वॉट एवर जो 30 डेज होते हैं उसके हिसाब से रहता है। ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। देन स्ट्रक्चर प्रीलिम्स इज देयर,
At present prelims is objective, 2 subject, 2 papers है उसमें, 2 papers. Okay, we shall talk about these papers also, paper 1, paper 2. Then we are having mains examination, which is totally written, and then we are having interview. Okay, so prelims, mains और interview. इस stages through जाना होता है. If you qualify prelims, then only you can appear for interview. Mains. If you qualify mains, which is a written, then you can only appear for interview. And finally, there is a combination of marks of mains and interview, and there is a declaration of list of successful candidates. तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि 1000 वैकेंसीज है, राइट? कितनी है? 1000 वैकेंसीज है. तो अभी अगर 24 सर्विसेज के लिए वैकेंसीज निकलेंगी ना, सो उसमें से आईएएस हो सकता है, आईएएस 100 हो, ठीक है, आईपीएस 200 हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले 30 हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईटी वाले, इनकम टैक्स वाले हो सकता है 150 हो, आईआरएस कस्टम्स वाले जो निकलेंगे वो हो सकता है कि वो भी 120 या 130 हो, ठीक है. और फिर अकॉर्डिंगली इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज उसके अगर 50 हो, ओके, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज उसके 40 हो, इस तरह से. सो ये जो सारी जो वैकेंसीज है, so these vacancies will get distributed like this, and on the basis of your all India rank, okay, on the basis of your all India rank, your categories, you will get position as a IAS, IPS, IFS, etc. officer. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मुद्दा है कि वैकेंसीज निकलती है. वैकेंसीज निकलने के बाद आपको फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन अभी प्रोसीजर है. उसके बाद फिर पहले हमारे टाइम पे लाइक पोस्ट से फॉर्म आता था, उसको भर के फिर दिल्ली भेजना होता था. नाउ द एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ओके, एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन अभी ऑनलाइन नहीं है, ओके. शायद हो सकता है कि आपके टाइम आते आते पॉसिबली इट विल बिकम ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेकिन उसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं. सो अभी वैकेंसीज निकल गई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहेगा. यू नीड टू अपेयर फॉर प्रीलिम्स. एट प्रेजेंट 2 पेपर्स है उसमें, लेकिन ये जो एक बात बता देता हूं मैं कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं, ओके. लाइक ड्यूरिंग माय टाइम आल्सो वी अपीयर्ड फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ओके, बट ओके, मिलिंद सर एंड मी, ओके, but and during our time also we studied history, ancient, medieval, modern. We studied geography, Indian geography, world geography. We studied constitution of India, economy, environment, biodiversity, international relations, okay. So even today the syllabus is same. Somehow the pattern is somehow changed, okay. pattern जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है. जैसे हमारे वक्त 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहते थे, अभी 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ है. तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा. तो आगे चल के भी ये जो इसका जो सिलेबस रहेगा ना, इट विल नॉट चेंज, है ना. सिलेबस के बारे में, जैसे हर सब्जेक्ट के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल बात करने वाले हैं, और मैं आपको बिल्कुल उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जानकारी रहेंगी, अप्रोचेस है, इंफॉर्मेशन है, कंसेप्ट्स है, एनालिसिस है, ओके. सो एवरीथिंग आई माई सेल्फ एंड माई अदर फैकल्टीज विल डिस्कस विथ यू. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट सर्विस, IAS, ओके. अभी एक सर्विस के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा. अच्छा, चलो, किसे पता है कि IAS क्या होता है, एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इफ यू बिकम IAS? बताइए, एनीबडी who is having knowledge कि what are the duties and responsibilities and opportunities of the IAS? Anybody? Administrative services. Indian Administrative services. Okay, Indian ये Administrative तो Services. yeah, this is full form of IAS, भारतीय प्रशासकीय सेवा. Yes, ये इसका फुल फॉर्म हो गया. हाँ, यस. नाम बताइए और मुझे इसके बारे में बताइए. यस सर, अमेय नगरकर. हाँ, सर, अमेय, जो करप्शन होता है ना जो गवर्नमेंट में, वो IAS का काम होता है कि उसको रिमूव, हटाना. अच्छा, करप्शन को हटाना, यही एक ही काम होता है क्या उसका? So policy, नहीं सर, बहुत सारे advertising, अलग अलग ड्यूटीज रहती है. Sir, they need to maintain the law and order of the city. ओके, लॉ एंड ऑर्डर, ओके. और
Sir, a particular district is given to them, and they have to look after that all the issues like they have to solve all the issues of the people over there. Right. Okay. So farming policies. फार्मिंग पॉलिसीज, ओके। चलो, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट में अगर आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो वो डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है क्या? बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल दे आर हैविंग अ वेरी ग्रेट इक्वेशन ऑफ द आईएएस, दैट आईएएस मींस व्हाट? कलेक्टर, है ना? आईएएस इज इक्वल टू व्हाट? कलेक्टर। ये हमारे दिमाग में ये जो इक्वेशन है ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठा हुआ है कि आईएएस मतलब क्या होता है? कलेक्टर होता है, राइट? बट कलेक्टर इज अ responsible job of IAS officer during his entire tenure, right? He won't remain collector. Okay, वो 3-4 साल कलेक्टर रहेंगे या 5-6 साल कलेक्टर रहेंगे, but he won't get this only post, okay, or only position. There are so many positions of IAS officers. So can you explain me, anybody, those who is having idea about the like different positions of the IAS officer? लॉ एंड ऑर्डर आपने बिल्कुल सही बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यस, फार्मिंग पॉलिसीज में वगैरह, जैसे लाइक देयर आर सो मेनी पॉलिसीज वेयर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ आईएएस ऑफिसर। एनीबडी जिनको पता है? काफी सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि किसी के मतलब फैमिलीज में कोई ऑफिसर्स हो, ओके, तो दे मस्ट बी नोइंग कि व्हाट इज अ नेचर, व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईएएस ऑफिसर। एनीबडी? कोई भी नहीं है? Sir, to remove corruption from the nation. अरे बाबा, अगर आईएएस का अपॉइंटमेंट करप्शन दूर करने के लिए होता था तो हमारे देश में इतने बड़े करप्टेड प्रैक्टिसेस होते हैं जिसमें खुद आईएएस ऑफिसर रहते हैं। Sir, to handle police. To handle police. Okay. हाँ, देखो, they need पुलिस, to advise ministers on various issues. yes, that is a like very nice answer, right? हाँ, बिल्कुल वो मिनिस्टर्स लोगों को जो फीडिंग देना होता है ना, या जो भी व्हाट यू कैन से एडवाइस, ओके, एंड द थिंग्स, okay, they so this is a duty of IAS officer again at the higher level, right? So collecting revenues. Collecting revenue. क्या कहा आपने? रेवेन्यू? Sir, revenues. हाँ, ओके, चलो। सो आई फील कि लाइक यू डोंट हैव स्पेसिफिक आइडिया अबाउट आईएएस ऑफिसर, ठीक है? तो you were asking about positions of hello, yes, so I will say few things related to the jobs, nature, duties, responsibility, powers of IAS ऑफिस, ठीक है? मैं थोड़ा सा अपनी तरह से बताना चाहूंगा। देखो, अभी आप लोग सारे के सारे बच्चे अभी स्कूल में हो और कुछ लोग जो है वो जूनियर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मतलब 11th 12th कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ, हेलो Sir, I got disconnected from the meeting. हाँ, तो कनेक्ट हो गए ना? हाँ सर, वापस हो गया। हाँ, चलो, तो कनेक्टेड रहो, ओके, कनेक्टेड रहो। इन केस अगर कुछ किसी का डिस्कनेक्ट हो जाता है, सो लेक्चर के बाद मुझे मैसेज भेज देना कि सर मुझे आज का रिकॉर्डिंग भेज दो, तो आई विल सेंड यू लिंक एंड पासकोड। सो ऑन दैट लिंक एंड पासकोड यू कैन वॉच एंटायर लेक्चर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? हाँ, कोई भी अगर लेक्चर आपका मिस हो जाता है और आपको उसका लिंक पासकोड चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, लेक्चर के बाद मैं दे दूंगा। अभी हम बात करते हैं आईएएस के बारे में। देखो, ये जो आप लोग ना स्कूल में पढ़ रहे हो, तो हमारे देश का ना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे अभी वी आर इन महाराष्ट्र, सो वी आर हैविंग एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसने कुछ बातें बनाई है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 टायर स्ट्रक्चर बताया है ना? क्या बताया है? देयर इज लेजिस्लेचर। हाँ, ये अभी देखो, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको, ओके? लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज जुडिशियरी, ओके? अभी ये तीनों में आईएएस ऑफिसर कहाँ पे आएंगे, बताइए मुझे। आईएएस ऑफिसर
एग्जीक्यूटिव ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव में आएगा। इसको हम मराठी में बोलते हैं कायदे मंडळ, इसको हम बोलते हैं कार्यकारी मंडळ, और इसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। ओके, इसे हम क्या सर बोलते हैं? आईएएस जुडिशियरी में क्यों नहीं आ सकता? नहीं, वो जुडिशियरी में नहीं आते, जुडिशियरी में वो जजेस आते हैं, जजेस, ठीक है। हाँ, वो जजेस आते हैं, उसको भी न्याय दंडाधिकारी वगैरह बोलते हैं, बट वो कोर जुडिशियरी में नहीं आते। जो कोर जुडिशियरी होती है ना, जुडिशियरी में जैसे हाई कोर्ट के वो जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो वैसे वो जजेस नहीं बन सकते, ठीक है। ओके, देयर प्रोफाइल इज डिफरेंट एंड दिस प्रोफाइल इज डिफरेंट। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है तुम्हारा, लेकिन ओके, आई लाइक दैट क्वेश्चन। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या है ना कि लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर? अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, देखो अभी ये समझने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर? व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर? बताइए। To make To laws. implement laws. No, implementation is different thing, making laws is different thing. Who make laws? Legis. To make अरे आप लोग अभी नागरिक शास्त्र सिविक्स पढ़ रहे होंगे ना, स्कूल में आपने पढ़ा होगा, स्कूल में सिविक्स पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? सिविक्स ये था कि नहीं आप लोगों को स्कूल्स में? अभी है कि नहीं? काफी सारे elections in a safe environment. हम्म, To carry out elections in a safe environment. अरे बाबा, दैट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Sir, to make laws. To make laws. Yes, to make laws. So which organization make laws in India? Which organization is responsible to make laws? भारत में कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कानून बनाती है, लॉज बनाती है? बताइए। राज्यसभा, लोकसभा। हाँ, उसको क्या कहा जाता है कलेक्टिवली? पार्लियामेंट। Parliament House. पार्लियामेंट। यस यस यस, देखो मैं आप, हाँ Sir, IPS handles all the cases of police and law and orders. हाँ सुमेध, यस, आईपीएस हैंडल्स ऑल द केसेस रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, और उनके साथ आईएएस ऑफिसर भी होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने के लिए। ओके, चलो, तो ये देखो, ये पार्लियामेंट जो है ना, ये कानून बनाती है, ठीक है, कानून बनाती है। पार्लियामेंट जो है कानून बनाती है, और पार्लियामेंट में 3 लोग होते हैं। एक होते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के सिवाय कानून नहीं बनता। जब तक प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं होती है ना वहां पे, तब तक कानून नहीं बनता है। आपने सुना होगा बिल, सुना है क्या आपने? बिल एंड एक्ट सुना है आपने? Yes. है ना? हाँ, इन sir. मराठी इट इज Yes, कॉल्ड sir. एज विधेयक। इन मराठी बिल इज कॉल्ड एज विधेयक और एक्ट इज कॉल्ड एज कायदा, है ना? कायदा, बिल आणि ऍक्ट किंवा काय, है ना, विधेयक आणि कायदा। सो प्रेसिडेंट जब तक सिग्नेचर नहीं देते तब तक वो लॉ नहीं बनता। और लॉ कैसे बनता है? जो लोग लोकसभा में, जो हम लोग, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, उनको क्या कहा जाता है? लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग जाते हैं उनको क्या कहते हैं? Member of Member of Member of parliament. Member of है ना? So the Yes, member of member of parliament. यस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना? और फिर राज्यसभा के भी जो लोग होते हैं ना, दे आल्सो दे दिस मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा, दे आर कॉल्ड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे कानून बनता है, लेकिन कानून जो बनता है उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम है ना, ये मेनली कौन करते हैं? President. नो, Executive. एग्जीक्यूटिव किसको कहा जाता है? सीओएम। व्हाट इज सीओएम? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो आज पूरा मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक पढ़ा दूंगा, ठीक है, इसके साथ साथ। हाँ, अच्छा, आपको ठीक लग रहा है ना ये सुनने के लिए? बोर नहीं हो रहा है ना? हाँ, यस, बोर नहीं होना चाहिए हाँ किसी को, क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट चैनल नहीं चला रहे हैं, राइट? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना, सीओएम, ये हमारे राज्य को और देश को चलाते हैं। जैसे देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, राइट? हाँ, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये बेसिकली है एग्जीक्यूटिव। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये 5 साल के लिए आते हैं और फिर बैठ जाते हैं। अगर सपोज इलेक्शन में अगर किसी पार्टी की अगर जीत हुई तो दे विल फॉर्म गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम। अगर हार गए तो जो दूसरी पार्टी आएंगी
वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन जो आप लोग जो हो ना, जो आज अंदर जाते हो, ओके, वंस यू गेट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन एट द एज ऑफ 22, सपोज मैं ये आशा करता हूँ कि आप जितने भी बच्चे हो मेरे सामने और जिनको लगता है कि भविष्य में IAS IPS बनना है या दूसरे कोई भी सर्विसेज में जाना है, तो आई विश अ ग्रेट सक्सेस फॉर ऑल ऑफ यू। जिनको लगता है कि डिफेंस सर्विसेज में जाना है, तो मैं बिल्कुल मेरी मंगल कामनाएं रहेंगी कि जिनको डिफेंस में जाना है तो वो बिल्कुल 12th में ही 18 के एज में ही चले जाए, तो आप बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंचोगे। और अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो, तो आप बिल्कुल 22वें साल में 22 ईयर्स में ही आपको IAS IPS IFS बनने का पूरा चांस है। सिर्फ थोड़ा सा कनेक्टेड रहना, ओके, मंगेश बोरकर सर और संबोधि करियर एकेडमी के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड रहना। तो अगर आप उस तरह से रहते हो तो यू विल डेफिनेटली, और या अदरवाइज यू कैन चूज अ मेंटर। बहुत अच्छे मेंटर आपको अगर कोई मिल गए गाइडेंस करने के लिए और आप पढ़ाई करते हो, तो आप उस लेवल पे निश्चित तौर पे पहुंच जाओगे, राइट। सो आप लोगों का जो रिटायरमेंट है ना, जैसे मिनिस्टर्स लोगों का MP MLS का जो ये रहता है, सो 5 साल के लिए आते हैं, अगर फिर से सर, मौका मिले तो वो जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर एज लिमिट क्यों रहता है इसमें? बेटा, मैं ये क्वेश्चन जो है ना इसके बाद में आंसर्स दूंगा, लेकिन अभी मैं पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। और क्या है कि अभी मैं ये सब बता रहा हूँ ना, तो रिलेटेड टू ये, क्योंकि हम पूरे जो सेशंस चलेंगे ना, तो उसमें अलग अलग मुद्दों पे एज लिमिट, अटेम्प्ट्स, ऑल दिस थिंग, इस पे हम ध्यान देंगे। लेकिन अभी आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो नाराज नहीं करूंगा। देखो, एज लिमिट क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब्स में हम लोगों को जाने के लिए एक स्पेसिफिक हमारा एक एज होता है जिसमें हम काफी सारी अच्छी बातें कर सकते हैं। वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप लोग अभी बच्चे हो, सपोज आप मेरे सामने जो हो 14 से लेके 18 ईयर्स तक के लोग हो, बच्चे हो, ठीक है, कोई 13 का भी होगा, राइट। सो इसके बाद जैसे ये आपका अभी स्कूल डेज है, स्कूल चल रहा है, आपका स्कूल है या फिर जूनियर कॉलेज में हो, आप जैसे एडल्ट हो जाओगे 18 के बाद, ठीक है। और 18 टू 21 22 जो रहेगा आपका पढ़ने का एज होगा, ठीक है, 22 तक का। 21 तक तो ग्रेजुएशन हो जाता है स्टूडेंट्स का, 22 में आप यंग ऑफिसर बन सकते हो। क्या होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति एकदम से, अगर गवर्नमेंट ने अगर एज लिमिट रख दी कि 50 तक प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये चलेगा क्या? क्योंकि नॉर्मली हमारा लाइफ साइकिल किस तरह से है, वी आर हैविंग अ लाइफ साइकिल, है ना। क्या होता है कि 21 तक हम पढ़ाई करते हैं या 22 तक पढ़ाई करते हैं, फिर हम रोजगार ढूंढते हैं, ओके, रोजगार ढूंढते हैं। सपोज चलो रोजगार मिल गया हमें, वी गॉट एम्प्लॉयमेंट हमें मिल गया 24वें साल में, 25वें साल में। तो इवेंचुअली व्हाट हैपन, मैरिज हो जाता है, ओके। तो फिर हमारी जो सिस्टम है, एक सोसाइटी जो है, वो उस तरह से रन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की, ये वो वगैरह। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आप लोगों को गवर्नमेंट के जॉब्स में जाने के लिए एक स्पेसिफिक एज लिमिट रखा है कि आपको 30 तक जाना है, 32 तक ही जाना है या 35 तक जाना है, और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए फिर अलग अलग प्रावधान वगैरह है। तो इसका उद्देश्य यही है कि कैच देम यंग, स्पेसिफिकली कैच देम यंग, ओके। जो उत्साह, जो पैशन, जो डिटर्मिनेशन, जो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट, जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, दैट इज इन द यंग एज स्पेसिफिकली, एंड इन यंग एज यू कैन डू सो मेनी ग्रेट थिंग्स, है ना। उस समय हम पैशनेट रहते हैं। क्या होता है, जैसे आदमी 40s में आ जाता है, 50s में आ जाता है, तो थोड़ा सा उसका जो एक काफी सारे लोग एक्टिव भी रहते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप इस एज में अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो, तो आप उतना एनर्जेटिक काम नहीं कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ एज लिमिट, ओके, दैट्स व्हाई देयर इज अ एज लिमिट। एंड देयर आर अदर टेक्निकल इश्यूज आल्सो, जैसे हाँ, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पेंशन वगैरह मिलती है, ठीक है, पेंशन वगैरह मिलती है। अभी क्या होता है कि 20 ईयर्स है, you need to finish your 20 years of services, you need to do your 20 years of services, after that only you will get pension. So लगभग क्या है ना कि अगर 40s में आप अंदर जाते हो, तो आप 60s में सपोज रिटायर्ड होते हो, ओके,
40s में अंदर जाते हो, 60s में आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको पेंशन मिलती है। जैसे स्टेट सर्विसेज है ना, स्टेट सर्विसेज महाराष्ट्र की या अलग अलग राज्यों की, वहां पे अभी एज लिमिट लगभग 40 हो गया है बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजंस। ओके, लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कैसा है कि अभी 32 का एज लिमिट है। अगेन 30 तक का पहले एज लिमिट था, अभी 32 कर दिया गया। सो देयर आर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस इसके लिए, बट यह भी एक कारण है कि एक सर्टन साइकिल ईयर्स, एक सर्टन सेवा, सर्टन ईयर्स की सेवा पूरी करने के बाद ही आपको जो बाकी फैसिलिटीज है वो मिलती है। एंड दैट्स व्हाई आल्सो इट इज नेसेसरी टू गेट इनटू सर्विसेज एट द यंग एज, या फिर एज लिमिट्स उसके लिए रखी गई है। चलो ठीक है, तो चलो मैं अभी थोड़ा सा इस पे आता हूँ। तो देखो हमारा एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में मैंने कहा कि वी आर हैविंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये परमानेंट नहीं होता है, ये चेंज होते रहता है, लेकिन ऑफिसर्स परमानेंट होते हैं टिल देयर रिटायरमेंट, 60, 62, 65 जो भी होगा उसके हिसाब से। अभी हमारा देश कैसे चलता है? सो वी आर हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, है ना, वी आर हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एग्जीक्यूटिव में देखो क्या क्या आता है और किस तरह से देश चलता है, ये भी बात समझ लो, और उस देश चलाने में ऑफिसर्स का क्या योगदान होता है ये भी समझ लो। तो एग्जीक्यूटिव में क्या है, देखो आप लोग अभी एजुकेशन ले रहे हैं, तो आई विल टेल यू एजुकेशन डिपार्टमेंट, राइट? एजुकेशन डिपार्टमेंट, वी आर हैविंग वन मिनिस्टर which is cabinet minister of education department. We are having प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के एक मिनिस्टर होते हैं और हायर एजुकेशन के अलग मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, ये बात पता है आपको? वी आर हैविंग सेपरेट एजुकेशन मिनिस्टर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड वी आर हैविंग सेपरेट कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। अभी ये जो डिपार्टमेंट होता है ना, वी आर हैविंग मंत्रालय, आप लोगों को पता है महाराष्ट्र का मंत्रालय कहाँ पे है? वेयर इज मिनिस्ट्री? हाँ, मंत्रालय मुंबई में है ना, मुंबई में है मंत्रालय, यस मुंबई में है। तो अगर कभी चांस मिला ना मंत्रालय देखने के लिए तो चले जाना, और वहां पे अगर आपको और चांस मिला तो यू गो एंड यू विजिट टू द सेक्रेटरी लेवल और द प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, और अगर चांस मिला तो डू विजिट टू चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे, अगर आप जाओगे तो वो आपको बताएंगे कि काम किस तरह से चलता है। मैं यहाँ पे थोड़ी बात रख देता हूँ। So what happened here? We are having education department. Likewise, we are having so many departments, है ना। तो अभी आप लोग एजुकेशन से एसोसिएटेड हो तो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ दिस। तो यहाँ पे मिनिस्टर है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के मिनिस्टर है, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर है। इनके जो इस डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ओके, वो क्या होते हैं? सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर। देखो मैंने क्या बात कही आपसे, मैं डायरेक्टली हायर लेवल पे गया हूं, ठीक है। हम पहुंचे हैं मंत्रालय में, हम पहुंचे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन दो विंग्स देखी। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, प्रधान सचिव, दे आर सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर्स। अभी सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर क्या हो गया कि जिस व्यक्ति ने कम से कम IAS होने के बाद, जो व्यक्ति कम से कम 20-25 साल की जो नौकरी कर चुके हैं, दे विल रीच एट दिस पोजीशन, ठीक है, दे विल रीच एट दिस पोजीशन। शुरुआत जो हुई थी IAS ऑफिसर की, वो डेप्यूटी चीफ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद, फिर अलग अलग जो विकास प्रोजेक्ट होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके डायरेक्टर्स, ओके, फिर कलेक्टर एंड डिफरेंट पोजीशंस वगैरह वगैरह, और जाते जाते फाइनली वो लोग आ जाते हैं मिनिस्ट्रीज में एट द सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल। नाउ कीप इन माइंड फ्रेंड्स, ये हमारे पूरे स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। इनके जो बॉस रहेंगे दे आर मिनिस्टर्स, बट whatever the decision taken by the ministries, that will be implemented through the secretaries. Education
उसके बारे में कोई भी सूचना, कोई भी जो डिसीजन रहेंगी, कोई भी जो पॉलिसी बनेगी, वो पॉलिसी बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहेगा? इस व्यक्ति का, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर का। जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, राइट, है ना, पैंडेमिक चल रहा है, आप लोग घर पे बैठे हो, आप लोगों के ऑलमोस्ट अभी 10th की जो एग्जाम्स है वो क्या कहा गया कि होने वाली नहीं है, ठीक है। 12th के एग्जाम के बारे में अभी तक आई थिंक देर इज नो डिसीजन टेकन, राइट। और बाकी जो एग्जाम्स है 7th 8th 9th आपको सभी को प्रमोट किया गया है ना, प्रमोशन मिल गया ना आप सभी को? सभी को प्रमोशन मिला है? Yes, sir. हाँ, तो ये जो प्रमोशन दिलाने का जो काम किया है वो किसने किया है? उसके पीछे ये जो मिनिस्टर ने जो निर्णय जो लेते हैं ना, जो मिनिस्टर लोग जो निर्णय लेते हैं, सो ऑन व्हाट बेसिस दे टेक दिस डिसीजन? आफ्टर Sir, your voice is not coming. Yes, sir, your voice is not coming. Sir, you are not audible. यस, सो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। आवाज आ रही है मेरी? यस, Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा सा ये नेट का इशू हो गया था। देखो अभी थोड़ी देर हम चलेंगे। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई आपको? मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, जैसे फ्री एजुकेशन की पॉलिसी, जैसे फ्री एजुकेशन की पॉलिसी, जैसे एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने हैं, रिफॉर्म्स, ओके, रिफॉर्म्स लाने हैं, चेंजेस करने हैं, जैसे गर्ल्स को फ्री एजुकेशन देना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जैसे आपका आरटीई निकला था, राइट टू एजुकेशन, ओके, राइट टू एजुकेशन, 6वीं से लेके 14वीं तक के जो 14 इयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलाना, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलता है। फिर 25% एक क्राइटेरिया है कि 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट लाइक बैकवर्ड कम्युनिटीज और फॉर पुअर कम्युनिटी स्टूडेंट्स, ओके, ऐसे है उसमें। तो ये सारी जो पॉलिसीज वगैरह बनती है ना, तो इसमें भी जैसे गर्ल्स कैंडिडेट्स होती है, तो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए अगर कुछ एजुकेशन पॉलिसी बनती है, ठीक है, तो ये किसके माध्यम से आती है? who will suggest these policies? Specifically senior most IAS officers or the officers from the lower administration also, they suggest these kind of reforms and eventually you can see these kind of reforms. So ये एक ही बात मैंने बताई आपको एजुकेशन के बारे में। वैसे ही क्या होता है, जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना, हमारे पास वी आर हैविंग इरिगेशन डिपार्टमेंट, ओके, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमारे पास विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, महिला व बाल विकास, इरिगेशन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय मंत्रालय है, हमारे पास माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए मंत्रालय है, माइनॉरिटीज वेलफेयर, है ना, हमारे पास जैसे माइनॉरिटीज वेलफेयर मींस अल्पसंख्याक समुदाय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, है ना, जैसे अभी फिजिकली हैंडीकैप लोग है, ऑर्फेन है, बैकवर्ड कम्युनिटीज है, उनके लिए सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट होता है। माइनॉरिटीज में जो अल्पसंख्याक होते हैं, रिलीजियस अल्पसंख्याक, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटीज है, सिख माइनॉरिटीज है, पारसी माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियंस है, जैन्स है, राइट, ओके, तो उनके लिए भी ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। महिला और बाल विकास, जैसे देखो जैसे रूरल एरियाज में काफी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, अर्बन एरियाज में होती है, स्लम्स के लिए होती है, जैसे जो गरीब बच्चे होते हैं, गरीब महिलाएं होती है, उनके लिए काफी सारी स्कीम्स होती है, हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स होती है, उनके लिए न्यूट्रिशनल डाइट्स के लिए स्कीम्स होती है, राइट। तो ये सारी इस डिपार्टमेंट की तरफ से चलती है, ठीक है।
इरिगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये किसके लिए होंगी? हमारे देश के जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ऐसे ना हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमारा होम मिनिस्ट्री होता है। होम मिनिस्ट्री, ये सारे जो आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं ना, दे आर वर्किंग अंडर होम मिनिस्ट्री। लेकिन इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, प्रधान सचिव, वो कौन होते हैं? सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, है ना। देखो मतलब ये आईएएस ऑफिसर जो है ना, ये आईपीएस ऑफिसर के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। जो आईएएस होते हैं ना, बिकॉज इनका जो डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री, है ना, होम, गृह मंत्रालय जिसको हम बोलते हैं, सो the principal secretary to that department at the ministry level is senior most IAS officer, okay। और फिर ये IPS officers जो है they comes under this ministry, okay, this ministry। तो IAS officer का मैंने आपको higher role बता दिया, okay। I am telling you the opportunities which are getting to the IAS officer, okay। So I hope you are understanding whatever I am saying, whatever I am giving with these different kind of examples. Okay, तो ये highest level हो गया। मतलब अगर आप IAS ऑफिसर बनते हो ना, तो आप हमारे देश में सपोज हमारा स्टेट अगर चलना है, तो हमारे स्टेट के मिनिस्ट्री लेवल पे अगर सपोज 25 डिपार्टमेंट्स है, 25 डिपार्टमेंट, ओके। तो उस 25 डिपार्टमेंट्स के जो 25 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज या सेक्रेटरीज रहेंगे ना, दे विल बी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स। अच्छा, इसमें हायरार्की में एक हायरार्की भी होती है। इसमें देयर इज अ हायरार्की। हायरार्की मींस व्हाट? हायरार्की मींस व्हाट? सबसे ऊपर कौन है? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ओके। उनके नीचे अतिरिक्त सचिव होता है, एडिशनल सेक्रेटरी, ओके। फिर जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। सुना था क्या आपने? ये हायरार्की है। जैसे आप सबसे सीनियर मोस्ट हो, तो आप क्या होगे? उस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। यू विल बी अ बॉस ऑफ दैट डिपार्टमेंट, है ना। हमारे स्कूल्स में वगैरह होते हैं ना, किसी किसी जैसे कॉलेजेस में होते हैं, एचओडी होते हैं, और एचओडी के बाद फिर सबसे जो कॉलेज के जो हेड होते हैं, दे आर प्रिंसिपल, ओके ओके, दे आर प्रिंसिपल्स। सो हियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके जो नीचे होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, ये थोड़े से उनमें सीनियरिटी में थोड़े कम रहेंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये उनसे सीनियरिटी में थोड़े कम रहेंगे। डेप्यूटी सेक्रेटरी, जो यंग आईएएस होते हैं ना, दे कैन बी एट दिस पोजीशन। एंड दिस अंडर सेक्रेटरी एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी वगैरह जो लोग होते हैं ना, सो बेसिकली दे आर गेटिंग प्रमोशन थ्रू स्टेट सर्विसेज। अंडर सेक्रेटरी लेवल तक जो लोग जाते हैं, बेसिकली दे आर फ्रॉम द स्टेट सर्विसेज। और स्टेट सर्विसेज जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई ऑफिसर है, तो he or she can reach up to deputy secretary, but they cannot be a principal secretary। वो लोग नहीं बन सकते, ओके। बहुत ही, क्योंकि दैट इज स्टेट सर्विसेज आर डिफरेंट एंड सिविल सर्विसेज आर डिफरेंट, ओके। तो ये मैं डिफरेंस आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हायरार्की, ठीक है। ये मंत्रालय में की हायरार्की मैंने बताई। मिनिस्ट्री, जहां से हमारे राज्य का, या अगर हम देश की बात करें तो देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, दिस इज कॉमन एवरीवेयर, ओके, दिस इज कॉमन एवरीवेयर, राइट। सो आप अगर आईएएस बनते हो एट द एज ऑफ 22, एट द एज ऑफ 24, कौन से लेवल तक पहुंचोगे? ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो आप बनोगे ही बनोगे, लेकिन सबसे बड़ी पोस्ट होती है राज्य की चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। हमारे राज्य में एक ही चीफ मिनिस्टर होता है, राइट। सीएम एक ही होते हैं ना? हेलो, सीएम एक ही होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर? So likewise there is a only single post of chief secretary। ये जो चीफ सेक्रेटरी होगे ना, चीफ सेक्रेटरी इज द बॉस ऑफ एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ये जैसे आपके स्कूल में जो मुख्याध्यापक होते हैं, जो पूरे स्कूल को संभालते हैं, है ना, वो उन्होंने जो आदेश दिया वो बिल्कुल लोगों को, टीचर्स को मानना होता है ना। हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं वो चीफ होते हैं कॉलेज के। वैसे हमारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव जो, मतलब जो ये पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है, ये जो नौकरशाह जिसको कहते हैं हिंदी में, तो उनके हेड कौन रहेंगे? चीफ सेक्रेटरी,
तो आप में से कोई भी स्टूडेंट फ्यूचर में अगर 22, 23, 24 के एज में अगर कोई, जैसे कल मिलिंद सर ने क्या कहा था कि इट इज बेटर टू एंटर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन अप टू 25, उन्होंने 28 तक कहा था, बट इफ यू वांट टू रीच इट, if you want to reach at this higher position, then you need to enter into bureaucracy between these 22 से 24 में अगर आप जाओगे तो चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हो, 25, 26 में पहुंचते हो तो आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हो, अगर 30s में जाओगे तो आप सेक्रेटरी लेवल तक जाओगे या फिर एडिशनल सेक्रेटरी तक रिटायर्ड हो सकते हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर, मींस इफ योर एम इज टू गो इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, so you should think about the services at the school age or at least during your college age. मतलब जब आप 12th के बाद जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते हो ना, so उस टाइम पे आपको इस सर्विसेज के बारे में बहुत ही सिंसियरिटी से सोचना आवश्यक है, बिकॉज एक्चुअल प्रिपरेशन यू कैन स्टार्ट आफ्टर योर 12th। जैसे हमारे यहाँ पे अभी 12th के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो अलॉन्ग विद देयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर they join my coaching for the 3 years for the UPSC preparation. There are many students at my institution, those who are taking training coaching since a year. जैसे ऑनलाइन पे हमारा भी लास्ट ईयर से बैच शुरू हो गई, तो अभी 1 साल मेरे बच्चों का कंप्लीट होने को आया जो 12th के बाद मेरे पास ज्वाइन हुए हैं, राइट। तो अगर इस एज में आप करते हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के साथ, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल एट द एज ऑफ 22। और अगर 22 में 23 में अगर आपने आपका अचीव कर दिया, सो यू विल डेफिनेटली रीच एट दिस पोजीशन, ठीक है। तो अभी मैंने डायरेक्टली आपको टॉप मोस्ट लेवल के बारे में बताया, अभी मैं आईएएस के जो इनिशियल लेवल होती है ना उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ओके, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आईएएस बनने के बाद इनिशियल पोजीशंस क्या होंगी। पहले तो आपका 2 इयर्स का प्रोबेशन होता है, ट्रेनिंग प्रोबेशन वगैरह होता है, मतलब जैसे परीक्षा विधिन अधिकारी बोलते हैं उसको। ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग यू नीड टू वर्क एट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज में, ग्राम पंचायत में भी आपको काम करना होता है, ठीक है। वो प्रोबेशन का पीरियड होता है। फिर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कलेक्टर, ओके, उप जिलाधिकारी के निवासी उप जिलाधिकारी वगैरह बोलते हैं उसको, रेसिडेंट कलेक्टर, ओके। देन आपको किसी जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकात्मिक ग्रामीण विकास प्रोग्राम वगैरह होता है, तो उसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर्स वगैरह के जॉब करने होते हैं कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, ओके। एंड इवेंचुअली यू गेट चांस टू बिकम अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। हैव यू हर्ड दिस जिला परिषद, सुना है आपने? Yes. है ना, जिला परिषद। Yes, sir, ZP. जेडपी, क्या बात है जेडपी, हाँ। तो जिला परिषद, काफी सारे जो स्टूडेंट्स दोज हु आर फ्रॉम रूरल एरियाज, सो दे टेक एजुकेशन फ्रॉम जिला परिषद। अभी तो गांव-गांव में सीबीएसई की स्कूल्स निकली हैं, तो लोग जिला परिषद की तरफ नहीं जाते, और जो सो कॉल्ड हाई फाई स्कूल्स होती है जो बहुत ज्यादा फीस लेती है, वहां पे लोग, पेरेंट्स को भी लगता है कि ज्यादा फीस लेते हैं तो चलो भाई अच्छा एजुकेशन होगा। बट मैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू, जितने भी आज की डेट में जितने भी लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हो चुके हैं, ओके, those who qualified these examinations, most of the students they belong to these Jilla Parishad wala school, okay. Most of the students they were from vernacular medium, हाई-फाई इंग्लिश बोलते आना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल इंग्लिश अच्छी होने से हम लोग यह एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। देयर इज अ मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू दिस इन अमॉन्ग मेनी पेरेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स रादर, okay. I have seen so many thousands of students in my this 15 years career of teaching. So I have seen that many students, those who studied from the Jilla Parishad schools or municipality school, okay, and even जिनका मराठी या हिंदी या फिर जो भी वर्नाकुलर मीडियम होता है अदर देन इंग्लिश,
वो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करके ये इंग्लिश मीडियम वालों को बिल्कुल वो ओवरटेक कर लेते हैं, है ना. कछवा और वो क्या बोलते हैं उसका, कासवाणी सशाची गोष्ट ऐकली असेल ना तुम्ही, ऐकली आहे ना सगळ्यांनी. सो दिस इज द सेम थिंग इज हियर. मतलब ये कछवे, ये बेचारे, ये जो वर्नाकुलर मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स है, दे आर लाइक कछवा, है ना. और ये इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स है, वो समझ लो कि वो ये है, हाँ, हेयर के जैसे, हाँ, खरगोश के जैसे. लेकिन ये लोग, मैंने देखा है कि बिकॉज एवरी ईयर results come out, and when I see the list, and even like every year I conduct mock interviews for the students. Many of my students, they qualify examinations, prelims, mains. Okay, so काफी सारे जो students जो होते हैं ना, so they are from the vernacular medium. So anyway, that is not a topic of our discussion. That is not a topic of our discussion. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिला परिषद में हम जाते हैं. सो जिला परिषद का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ओके, ZP चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ही इज अ IAS ऑफिसर. और ये इनिशियल लेवल की पोस्टिंग होती है जिला परिषद. हाँ, हमारे यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत. देखो अभी मैं फिर से आपको पढ़ा रहा हूँ. हाँ, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको कहते हैं ना, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत का जो गवर्नमेंट का जो ये होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसे क्या कहते हैं? जो ग्राम पंचायत में जो गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, गवर्नमेंट का जो व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं हम? अरे बताओ. ग्राम सेवक. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? ग्राम सेवक. ग्राम सेवक. हाँ, पंचायत कभी समिति कभी सुना है. कभी कभी सुना है. अच्छा, तो अभी सुन लो और अभी इसको ध्यान में रखो. पंचायत समिति में जो गवर्नमेंट की जो ऑफिसर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? पंचायत समिति के जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं, जो MPSC क्वालिफाई होके आते हैं, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करके आते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? BDO. क्या कहते हैं? BDO. हाँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. ये जो पोजीशन है ना, दैट इज थ्रू MPSC. और यहाँ पे जिला परिषद के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, ये होते हैं IAS ऑफिसर. और जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, सपोज आपका 2021 में सिलेक्शन हो गया IAS के लिए, तो एक लगभग 3 से 4 साल में, इन 3 to 4 years you will get opportunity to serve to the CEO of जिला परिषद, ZP. ठीक है, चलो, ये हो गई इनिशियल लेवल की पोजीशन. ऐसे में कुछ खास पोजीशंस आपको बता देता हूँ, सो दैट आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा. तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं जिला परिषद के बाद, जैसे हम कोई छोटी बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज होती है ना, म्यूनिसिपैलिटीज, महानगर पालिकाएं, छोटी छोटी महानगर पालिकाएं. सो इन स्मॉल म्यूनिसिपैलिटीज एट द वेरी यंग एज, ओके, आफ्टर सिलेक्शन you can directly become कमिश्नर, आयुक्त. आप क्या बन सकते हो? कमिश्नर बन सकते हो. छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटीज, जैसे मुंबई में देखो, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, KDMC, है ना. हमारे एक स्टूडेंट थी, तृप्ति सांडबोर. सो शी वाज डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर, बट शी क्वालिफाइड MPSC एग्जामिनेशन. ओके, लेकिन वहां पे कुछ साल पहले एक बहुत ही नए IAS ऑफिसर थे, जिनका रिसेंटली सिलेक्शन हुआ था, बट ही गॉट पोजीशन ऑफ कमिश्नर ऑफ KDMC, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. उनको सिलेक्ट होके केवल मेरे ख्याल से 5 साल ही हुए थे, बट ही गॉट अ चांस, बिकॉज ये छोटी सी म्युनिसिपैलिटी है, छोटी सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, महानगर पालिका है. तो ऐसे महानगर पालिका का आपको कमिश्नर बनने का चांस मिलता है. बहुत बड़ी पोजीशन होती है. और खास करके जो मुंबई के रीजन में जो ऐसे छोटे मोटे जो शहर है ना, जो सिटीज डेवलप हुए हैं, वहां पे तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है. ओके, मेरे जो स्टूडेंट थी, तृप्ति जो थे, सो शी डिमोलिश ऑल द इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट डोंबिवली एंड द कल्याण रीजन. ओके, व्हेन शी वाज एट द कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ओके, सो ये हो गया आपका एक पोजीशन इनिशियल फेज का.
फिर आप धीरे धीरे कमिश्नर लेवल पे पहुंचते हो, बड़े कमिश्नर लेवल पे। जैसे बड़ी म्यूनिसिपालिटीज हो गई, जैसे थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ओके। और फिर हाँ सर यस, पण कल्याण आणि डोंबिवली पण जरा मोठं आहे ना? नाही ते कम्पॅरेटिव्हली यांच्या छोटच आहे ते. जसं आता ठाणे, मुंबई, नागपूर, पुणे यांच्यापेक्षा ते कम्पॅरेटिव्हली छोटा आहे. आपल्याला ते वाटतं कल्याण डोंबिवली, पण त्या छोट्या म्युन्सिपालिटीज आहे. म्युन्सिपालिटीज मध्ये, इन म्युन्सिपालिटीज देर इज अ रँकिंग, देर इज अ हायरार्की, ओके, देर इज अ रेकग्निशन, ओके. सो दीज आर लाईक, आपल्याला वाटतं ते की मोठं असेल, परंतु ते मोठे नसतात, ते कम्पॅरेटिव्ह टू द, म्हणजे if you get a chance to become a commissioner of Thane Municipal Corporation, Mumbai Municipal Corporation, हाँ, अभी मैं बहुत हायर लेवल पे नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि पता नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यस सर। है? सर Yes, sir. हाँ, बिकॉज मैं बहुत ही छोटे लेवल पे आके आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग, आई एम लाइक, मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को कितना रिसीव हो रहा है, ठीक है। और अभी थोड़ा सा टाइम भी खत्म होने को आ रहा है, तो मैं जल्दी खत्म भी करूंगा इसको। तो ये जो म्युनिसिपालिटीज होती है ना, ये बड़ी बड़ी होती है। इसका बजट अगर देखोगे ना मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो वो सबसे ज्यादा बजट होता है, सबसे, क्योंकि मुंबई को क्या कहा जाता है देश के बारे में? अगर मुंबई का नाम लेंगे तो व्हाट इज अ मुंबई? Mumbai is a financial capital of India. No, Mumbai is a financial capital of India. हमारी आर्थिक राजधानी कहा जाता है उसको। और हमारी पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी है हमारे देश की? दिल्ली। अरे यस, जनरल नॉलेज रखते जाइए। हाँ, ओके। तो फिर हम लोग आईएएस बनने के सपोज 20-22 साल के बाद आप लोग मुंबई जैसे सिटी के, मतलब मुंबई जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर बन सकते हो, ठीक है, ओके। लेकिन जैसे आपको नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर बनना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे तुकाराम मुंडे साहब थे, नागपुर म्युनिसिपलिटी के कमिश्नर थे, ठीक है। तो अभी मैं बाद में उनके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, ओके। सो तुकाराम मुंडे साहब थे, तो तुकाराम मुंडे साहब जो थे, उनका जो सिलेक्शन जो है ना, वो 2005-6 की बैच का है, ओके। मिलिंद सर के ही बैच के है वो, ओके। 5-6 या फिर 6-7 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। सो 2 years back, like last year only, he was a municipal commissioner of नागपुर। तो कितने साल के बाद, मतलब जैसे 14 years के सर्विस के बाद he got a chance to become a commissioner of Nagpur municipality. Nagpur municipality is a huge municipality. Earlier he was a commissioner of न्यू मुंबई महानगर पालिका, न्यू बॉम्बे, ठीक है। तो छोटी छोटी जो म्यूनिसिपालिटीज होती है, नॉर्मली 5-6 ईयर्स से लेके 10-15 ईयर्स के बाद आपको छोटी से बड़े म्यूनिसिपालिटीज का कमिश्नर बनने का चांस मिलता है। एंड देन आफ्टर सीनियरिटी यू विल बिकम रीजनल कमिश्नर, ओके। रीजनल कमिश्नर, प्रादेशिक आयुक्त। जैसे हमारा जो महाराष्ट्र है वो प्रदेशों में, मतलब विभागों में डिवाइडेड है ना, डिविजनल कमिश्नर, इसको डिविजनल बोलते हैं, डिविजनल कमिश्नर। जैसे डिवीजन है, जैसे क्या है, नागपुर एक डिवीजन है, अमरावती एक डिवीजन है, राइट, हाँ, पुणे क्या है, डिवीजन है। ये जो डिविजन्स है ना, हाँ, ऐसे डिविजन्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। जैसे नागपुर डिवीजन में बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बताइए। नागपुर डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? जो नागपुर के साइड के लोग हैं वो बताए मुझे। सर अकोला, भंडारा। अरे भंडारा ठीक है रे बाबा, भंडारा ठीक है, लेकिन अकोला कौन से साइड में आ गया? हाँ, उमंग, चलो बताओ नागपुर डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? उमंग सर है क्या? हाँ उमंग, हाँ बोलो। नागपुर डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? ये मैं थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज भी चेक करूंगा। गडचिरोली, गोंदिया, यस गडचिरोली, गोंदिया, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपुर, भंडारा, भंडारा, यस, वर्धा,
ग्रेट, हाँ, ओके, यस, ये सारे आ गए इसमें, है ना? वर्धा आ गया, गढ़चिरौली आ गया, चंद्रपुर आ गया, गोंदिया आ गया, भंडारा आ गया, ओके, नागपुर इटसेल्फ है। और कोई और कोई बचा है क्या? गढ़चिरौली। गढ़चिरौली हो गया, चलो ठीक है, चलो आपने बता दिया। अमरावती में, अमरावती में, अमरावती में कौन से आएंगे? चलो देख लेना, ये सी असाइनमेंट आज अकोला, आपको मैं, सर। हाँ, यस, नहीं, आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ अभी, असाइनमेंट, ओके, आई एम गिविंग यू असाइनमेंट ऑल्सो, आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप ये होमवर्क लिख लो। ठीक है, ये करना है आपको, ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कोर्स ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी बातें आपको भी करनी होगी। हाँ, तो महाराष्ट्र के जितने डिविजन्स है ना, महाराष्ट्र के जितने डिविजन्स, ओके, तो महाराष्ट्र में जो जैसे नागपुर, अमरावती वगैरह है, ओके, और जोया अगर आप हो तो आप आपके राजस्थान के जितने डिविजन्स है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट, हाँ, जो डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो उसका असाइनमेंट करके आना है, मुझे 2 दिन के बाद बताना है आप लोगों ने, ठीक है? हाँ, तो सर डिवीजन, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट पूरा लिखना है ना सर? हाँ, सिर्फ आपको डिविजन में, महाराष्ट्र, सपोज नागपुर डिवीजन है तो नागपुर डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, अमरावती डिवीजन है कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, औरंगाबाद डिवीजन है कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, वो आपको लिखना है। ज्यादा बड़ा हेवी असाइनमेंट नहीं है, राइट? इट्स नॉट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो हम लोग इस तरह से जाते हैं, और फिर हम आते आते अलग अलग जो काफी सारे संस्थाएं होती है गवर्नमेंट के, उसके हम डायरेक्टर जनरल बनते हैं, महासंचालक बोलते हैं उसको, ठीक है? खादी ग्रामोद्योग हो गया, या फिर बहुत सारे होते हैं रास्ते, मतलब रोड, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, या जैसे अभी एनएमआरडीए हो गया, एमएमआरडीए हो गया, ओके, मेट्रो हो गया, तो उसके जो डायरेक्टर जनरल वगैरह जो होते हैं ना, वो सारे के सारे कौन होते हैं? हु आर दे? आईएएस ऑफिसर। कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर। सो हेलो, आईएएस ऑफिसर क्या क्या कौन से पोजीशंस पे जाता है, पता चल गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नाउ एनी डाउट रिलेटेड टू दिस सेशन, बिकॉज आई एम कंक्लूडिंग। No. No, एनी sir. डाउट? No doubt. No, sir. सो देखो, ये सेशन मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लिया, इसमें मैंने एक केवल आईएएस ऑफिसर के बारे में ही मैंने बताया, रेस्ट ऑफ द मैं जो बाद में बताऊंगा ना, क्योंकि टाइम लगता है, देखो बच्चों, इसमें टाइम लगता है। ये मैं आपको फास्ट में बता दूंगा कि भाई आईएएस ये होता है, चलो कमिश्नर हुआ, तो आपको उतना अच्छे से नहीं पता चलेगा। एंड दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई आई फेल्ट इट नेसेसरी टू शेयर ऑल दिस थिंग्स विथ यू। और आप लोग ये बात समझ लेना मेरी, कि अभी ये जो हमारा सेशन हुआ है, और इसमें मैंने जितनी भी बातें आप लोगों से शेयर की है ना, so with these particular information, like you have received that knowledge which is not even to the elder candidates। जो आपके elderly students होते हैं ना, जो बड़े students है, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, उन्हें भी ये बातें पता नहीं होती है, ठीक है? अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो यू कैन आस्क टू योर एल्डर्स इन योर फैमिली, ठीक है? तो उनको पूछ लेना कि आपको पता है कि आईएएस के बारे में क्या क्या होता है, तो जो भी आज नॉलेज मिला है, शेयर विद द अदर्स। सर आप दिख नहीं रहे। Mute हो गए। Sir, your voice is breaking. Sir, you are not audible. Sir, हेलो,
Yes, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, so any doubt related to today's session? क्योंकि नेटवर्क के भी इश्यूज आ रहे हैं आज, थोड़ा सा क्लैरिटी. Any doubt? क्लैरिफाई हो गया? आपके डाउट क्लैरिफाई हो गए? हाँ सर, क्लैरिफाई हो गया। Will you take the filter of video? Pardon? हाँ, देखो आज का जो सेशन है ना, उसके बारे में मैं सभी लोगों को आपको जो YouTube का जो चैनल रहेगा अपना IAS संबोधि न्यूज, उस पे ये जो आज का जो लेक्चर है वो मैं अपलोड करूंगा एंड आई विल शेयर विथ यू. आप लोगों को मैंने कहा था कि जो अपना YouTube जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना है आपको. जो Yes, sir. Subscribe करें. बेल जो होता है ना, बेल आइकॉन होता है, बेल आइकॉन पे जाके सब्सक्राइब करो. ऑल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पे जाके ऑल सब्सक्राइब करना है. और अगर आपको लगता है कि ये जो न्यूज, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज में शेयर करनी है तो उसको शेयर करो. क्योंकि क्या है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, सो इट इज बेनिफिशियरी फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो. एंड अगर आपको लगता है कि सर ने अच्छी बातें बताई है तो आप अगर उसके ऊपर कमेंट करोगे तो आई विल अप्रिशिएट, है ना. वॉट एवर द कॉमेंट्स, आपको अच्छा लगता है, नहीं लगा है, वॉट एवर, लेकिन आई विल अप्रिशिएट, राइट. सो आपको वो भी करना है अगर पॉसिबल हुआ तो. सो आई विल अपलोड दिस वीडियो, टुडेज वीडियो. सर आप यस, नेम चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आपका चैनल का? नहीं, आई विल सी. मैं जैसे ही आपको ये वीडियो, देखो पहला फर्स्ट लेक्चर का भी वीडियो मैंने आप लोगों को सभी को भेजा था, देखा है क्या आप लोगों ने? हाँ सर। तो उसकी जो लिंक होती है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपको जो सब्सक्राइब करना है, तो पहले वीडियो एक 5 मिनट देख लेने का, 5 मिनट्स देख के उसको फिर आप सब्सक्राइब करो. ओके, तो वो ऐसे ही वो इसमें नहीं जाएगा. वो 5 मिनट आप लोग कम से कम उस वीडियो को देख लेना और फिर उसको सब्सक्राइब करना. सब्सक्राइब करते वक्त ऑल एक बेल आइकॉन आता है, उस बेल आइकॉन को दबाना है आपको. और बेल आइकॉन को दबाने के बाद एक और ऑप्शन आता है ऑल का, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो फिर जितने भी संबोधि करियर एकेडमी के फर्दर वीडियोस रहेंगे ना ये प्रोग्राम के बाद भी, क्योंकि हमारे 125 से ज्यादा ऑनलाइन मतलब वो यूट्यूब पे लेक्चर्स है, काफी सारे हमारे ऑफिसर्स के, मेरे खुद के अलग अलग विषयों पे. सो वो आप देख सकते हो, उसके नोटिफिकेशंस आपको आपके मेल पे आते रहेंगे. सो डू दैट थिंग. और ये जो मैं वीडियो भेजूंगा ना तो उसको भी आप उसी पे डायरेक्टली जाके सब्सक्राइब कर सकते हो. सेपरेटली नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन आई जस्ट मेंशन हियर नेम आल्सो. Excuse me, sir. यस. Sir, tomorrow is our holiday, so it will be counting in the 20 days course or No. So 20 days program means 20 lectures and even more than that. Okay, don't worry. Don't worry. Okay. Okay, sir. IS संबोधि न्यूज. सर मैंने आपको असाइनमेंट भेज दिया है। क्या बात है, वेरी फास्ट. ठीक है. सो IS संबोधि न्यूज मैंने डाला है. इट्स अवर दिस वन यूट्यूब चैनल का जो ये है, इट इज IS संबोधि न्यूज. एंड आई होप कि आप सभी के पास मेरा नंबर है जो व्हाट्सएप का नंबर है. सो वो मेरा नंबर है 810-801-645. और मेरा नाम पता है ना आप लोगों को? Yes, sir. मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर. मंगेश बोरकर सर, ध्यान में रखिए. एकेडमी का नाम बताइए. संबोधि कैरियर एकेडमी. संबोधि करियर एकेडमी. यस, संबोधि करियर एकेडमी. चलो, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू. कल का छुट्टी रहेगा. कल का 18 मई है, कल का छुट्टी है. 19 से लेके 23 का जो सेशन है ना, यस, हाँ, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे असाइनमेंट्स भेज सकते हो. मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है सभी के पास 8108016455. उस पे आप लोग आपका जो असाइनमेंट है वो भेज सकते हो. लिखिए, लिख के भेजिए. हाँ, लेकिन प्रिंट फॉर्म में नहीं चलेगा, लिख के भेजिए. ठीक है. हाँ, वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा. हाँ, प्रॉपरली लिखिए उसे और भेजिए मुझे नंबर पे. ठीक है. तो कल नहीं रहेगा हमारा, और नेक्स्ट से जो रहेगा ना 19 to 23, उसका जो शेड्यूल है वो मैं भेजूंगा. टाइम विल बी रिमेन सेम, लिंक, आईडी, पासकोड विल रिमेन सेम. टाइम हमारा 10:45 AM का है और मैक्सिमम 12:30 तक हम फिनिश करते हैं. चलो, विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye.